Hi everybody. Today is the day for 11th standard. 11th standard का lecture है आज. So today we are going to take trigonometry. Trigonometry 10th standard में भी हुआ है. अभी थोड़ा आगे जाएंगे. Slightly into the 11th standard. Basic identities are same. लेकिन एक दो रूल है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. Okay? Problem is similar to what you had done in the 10th, but with a slightly different thing. Okay? देखो क्या, I'm sure you will enjoy this. लेकिन बेसिक पक्का होना चाहिए. अगर पक्का नहीं है तो डोंट वरी, अभी हो जाएगा. If this one is from miscellaneous exercise 2, okay, maths 1 chapter 2. Name of the chapter is trigonometry 1. Sec theta equal to root 2 is given and 3 pi by 2 less than theta less than 2 pi condition. I'll explain. Then calculate all this. इसकी वैल्यू पूछिए. ओके. हिंट और की स्टेप, use 1 plus tan square theta equal to sec square theta and theta lies in the 4th quadrant. I'll explain all this. Okay. Now in the 11th standard में क्या सीखना है? First thing, there are 4 quadrants. First, second, third and fourth. 4 quadrant है. अभी कंडीशन क्या दी है? Theta lies between 3 pi by 2 and 2 pi. 3 pi by 2 less than theta less than 2 pi, इसका mathematical meaning है theta lies between these two values. अभी रेडियंस वी हैड स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर. अगर याद नहीं है 3 पाई बाय 2 यानी डिग्रीज कितना, तो एक सिंपल सी बात करनी है. जस्ट एक पाई इक्वल टू 180 फॉर कैलकुलेशंस. आई शो इट हियर. 3 पाई बाय 2 3 इंटू 180 अपॉन 2. कैलकुलेशन के लिए पाई इक्वल टू 180 डिग्रीज. अभी 22/7 नहीं, 290 180, 90 इंटू 3 270 डिग्रीज. सो ये 270 है. सिमिलरली दिस इज 360 डिग्रीज. सो हाउ डिड वी गेट ऑल दिस? कैसे आ गए? एक्स एक्सिस से चालू करो, 0 डिग्रीज से. गो टू द फर्स्ट एक्सिस of 90 degrees. Pi by 2 means 90. You have to memorize certain things. Pi by 2 means 90. 180 upon 2 means 90. So 90 here, 90 plus 90, 180. 180 के आगे अभी एक्सप्लेन किया 270. 270 is 3 pi by 2. And finally एक फुल सर्कल होने के बाद 2 pi मिलता है. 2 pi यानी 2 into 180, 360. Okay? So in order to convert, जल्दी से अगर कन्वर्ट करना है तो जस्ट एक पाई इक्वल टू 180 और डिग्रीज में कन्वर्ट करो. तो ये 270, ये 360 है. थीटा लाइज बिटवीन 270 एंड 360. दैट इज ओवर हियर. इट लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट. थीटा मीन्स दिस एंगल. आइदर यू कैन मेजर इट इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन. दोनों सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है. एनीवे दैट थिंग इज डिफरेंट. दैट वी हैव स्टडीड इन एंगल्स. तो ये थीटा 4th क्वाड्रेंट में. अभी 4th देयर आर सर्टेन रूल्स. व्हेन द एंगल लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव. cos एंड रेसिप्रोकल ऑफ cos. cos का रेसिप्रोकल क्या है? sec थीटा. सो 4th क्वाड्रेंट में cos theta and sec theta are positive. That is the rule. If the angle lies in the first quadrant like this, all ratios are positive. Sin, cos, tan, cot, cosec सब positive है. ऐश करो, सब positive है. You don't have to worry. If the angle lies in the second quadrant, sin and reciprocal of sin are positive. Sin and cosec are positive. That means अगर एंगल ऐसा है थीटा,
देन ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सब आंसर नेगेटिव है. इफ द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव. tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, साइन थीटा कोसेक थीटा सब नेगेटिव. सो दीज ratios indicate that they are positive in that quadrant. तो अपना जो एंगल है वो अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, where cos and sec are positive. Clear? Very clear? Okay. ध्यान में रखो, अपना एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में. अभी कहां से चालू करेंगे? tan थीटा वैल्यू इज गिवन, कहां पे दिया? सॉरी, sec थीटा वैल्यू इज गिवन. So I will use the identity 1 plus tan square theta equal to sec square theta. क्यों? sec theta की वैल्यू मालूम है ना, तो सेकेंड आइडेंटिटी यूज करो, कॉमन सेंस है. So 1 plus tan square theta equal to sec square theta. sec theta equal to √2, सब्स्टिट्यूट किया, √2 का स्क्वायर 2. Keep tan square theta on one side, 1 goes on the other side, 2 minus 1. So you get tan square theta equal to 1 from this identity, and putting the value of sec theta we get tan square theta equal to 1, and after taking square root, tan square theta का square root क्या है? tan theta. 1 का square root क्या है? root of 1 plus minus 1, right? Square root of any number should be taken as plus minus. Clear? ओके. सो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1. अभी 10th स्टैंडर्ड में सिमिलर प्रॉब्लम व्हेन यू हैड सॉल्व्ड, एवरीथिंग वाज पॉजिटिव. देयर वर नो रूल्स अबाउट द क्वाड्रेंट्स, कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है. लेकिन 11th में इतना ही फर्क है अभी, दैट फ्रॉम प्लस और माइनस यू आर गोइंग टू सिलेक्ट ओनली वन साइन. प्लस सिलेक्ट करो, नहीं तो माइनस सिलेक्ट करो. वो कैसे सिलेक्ट करेंगे? बट थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. वी हैव सीन अपना जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है. ओके. सो व्हेन थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, व्हाट हैपेंस? ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव. सिर्फ कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है. एवरीथिंग इज नेगेटिव. सो बिकॉज थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, only cos theta and sec theta are positive. So अपना tan theta will be negative. tan theta माइनस हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव है. That is how you select the sign plus or minus depending on in which quadrant the angle lies. Simple सी बात है. That is the reason that we have shown the diagram. Clear? सो tan थीटा की वैल्यू मिल गई. आगे ओके, लेट्स गो अहेड नाउ. सो यहां पे देखते जो है, व्हाट डू वी नीड? tan थीटा मिल गया. अभी लेट्स फाइंड आउट cot थीटा. क्यों भैया cot थीटा? क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ tan इज cot. मालूम है ना? मालूम होना चाहिए. रेसिप्रोकल ऑफ tan इज cot. सो अगर इसको उल्टा किया, रेसिप्रोकल लिया, cot मिल गया. सो एक आंसर आने के बाद उसका रेसिप्रोकल रेशियो ले लो, यू विल गेट दैट आंसर. सो बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू -1, देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. रेसिप्रोकल है ना, दैट इज 1 अपॉन -1. देखो tan थीटा -1 यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, 1 अपॉन -1 इज -1. सिंपल. ये जो आंसर आया उसका रेसिप्रोकल रेशियो cot थीटा वी आर गेटिंग एज -1. क्लियर? सो ये मिल गया. विल जस्ट टिक मार्क क्या क्या मिल गया अभी. tan थीटा cot थीटा. नाउ टू फाइंड कोसेक थीटा. कोसेक थीटा का आइडेंटिटी क्या है? कोसेक थीटा का आइडेंटिटी tan का मालूम है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा.
Same way, if you replace tan by cot, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Simple, right? So now I am going to use the identity for cot square theta or cosec square theta. Clear? 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Substitute the values. Cot theta इधर ही है, -1 का स्क्वायर +1, so 1 plus 1 gives you 2. So cosec square theta equal to 2. तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लो. स्क्वायर रूट मीन्स प्लस और माइनस. अभी वो ही करना है, अभी 11th स्टैंडर्ड में आ गए. सो सिलेक्ट प्लस और माइनस अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट. एंगल तो पहले दो तीन बार देख चुके हैं हम लोग. एंगल इज लाइंग इन द 4th क्वाड्रेंट. सो इन द 4th क्वाड्रेंट ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव. कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव. tan, cot, sin, cosec भी नेगेटिव. ओके, सो बिकॉज थीटा लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे वापस लिखना है थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट. Therefore, कोसेक थीटा इज -√2. नेगेटिव है ना, 4th क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव है. -√2. हो गया. चलो, the last few steps. कोसेक भी मिल गया. Now let us write this expression, और ये एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा. So I am writing that expression. करो सब्स्टिट्यूट, जस्ट ट्राई. स्टार्ट करो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. यहां पे आई जस्ट सॉल्व दिस हियर. टू गेट द फाइनल आंसर. सो 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू -1 है, प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू -√2 है. कॉट थीटा की वैल्यू भी -1 है. हियर एक रेसिप्रोकल लेते समय हम लोग ने लिया था वो. और कोसेक थीटा अगेन माइनस ऑफ -√2. प्लस ऑफ माइनस, प्लस और माइनस माइनस,
plus or minus minus, plus or minus minus, minus of minus plus, 1 minus 1 gets cancelled. What remains is minus root 2 upon plus root 2. Root 2 gets cancelled, 1 आ जाएगा. So final answer is just a simple minus 1. Interesting? Finding 11th standard interesting? Okay. You can ask me your doubts. My WhatsApp number is given in the video. Okay. So the main thing we learned today was, ये ऐसा याद रखना, CAST. C stands for cos and sec. A stands for all positive. S stands for sin and cosec. T stands for tan and cot. Sin और उसका रेसिप्रोकल, tan और उसका रेसिप्रोकल, जो यहाँ पे डिटेल में मैंने बताया है. These are the signs of trigonometric ratios in various quadrants. Practice करो, useful in 12th also. Okay, so that will be all for today. I'm sure you enjoyed the lecture. Share this with your friends. Right? See you in a day or two. Bye.